Hello student, very good morning to all. This is a class 10th and the chapter is ICT Skill 2nd, and today in this video we will discuss about the how can you create any file folder in your personal PC or personal laptop. So here some steps are given, so we will follow these steps for creating any file or folder. So first of all, you have to open the computer window. So suppose that this is a computer window and there have we will select the local disk D, and there have a drive partition or hard disk partition, and this hard disk partition have a 3 partition. Local disk C, so local disk C have installed your operating system, and then after we will use on this 2 drive remaining, so local disk D and local disk E. So you have to select first of all the any drive. So here we will select local disk D. So this is the blank area on this drive. So in this drive we will know about how can you create any file or folder. So suppose that this is our present location on the monitor screen. So we will first click on the mouse right button. Yeah, simply we can say that you have to press the secondary button, because the mouse have 2 buttons. First one is primary button and the second one is secondary button. So here we will use the secondary button. So first you have to click on the secondary button. So secondary button as per your choices. So suppose that if you are working on left-handed, so according to the left hand, the secondary button is left button of a mouse, and if you are working on the right hand, so according to the right hand, we will use the right button on the mouse. So that's why here we will use the secondary button. So first of all you have to press the secondary button. So before after this secondary button, this type of window will be appear. So here there have many options is available: view, sort by, group by, and we have to select the new option. So this is the new option. So we will drag the mouse cursor on this new option and simply click this new option button. So after this the new window will be generated. So here many options is available. So if you suppose that if you want to create any folder, then you will simply select on the folder option. Otherwise simply you have to simply select the text document for creating any file. So here we will know about how can you create any folder. So first of all you have to click on the right secondary button, and then after you will select the new option, and then after that we will click on the folder option. So here the new folder will be generated. So here the new folder will be generated. So after that you will assign the folder name. So how can you assign in the folder name? So here we will follow this step. So first of all we have to select the particular folder. So what is the first step? So first step we have to do means select the particular folder, and then after that you have to simply press on the keyboard keys F2. So here this one is F2 keys. So you have to simply click this F2 keys. So after this selected folder, here the name window या फिर जो जहाँ पे हमारा नेम रहता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक highlight window appear हो जाएगी. Then after that simple you have to type any folder name, so and then hit enter. So automatically the new name will be automatically assigned the particular folder. So here the another method for creating a file या फिर rename. So here simple select the file or folder that has to be renamed. Means हमें क्या करना है, उस particular folder को select करना है या फिर file को select करना है जिसको हम rename करना चाहते हैं, means फिर से उसका नया नाम देना चाहते हैं. Then after that right click on it, text menus appear, and then after that हमें क्या करना है, उस जो भी हमारा folder है उस folder पे right click करना है, and then after we will select the rename option. उसके बाद हमें क्या सिलेक्ट करना है, रीनेम ऑप्शन, एंड देन द टाइप न्यू नेम एंड प्रेस एंटर. तो हमें क्या करना है, सिंपल जो हमारा न्यू जैसे हमारा रीनेम के लिए हम क्लिक करेंगे तो वहां पे एक न्यू विंडो जनरेट हो जाएगी. बस हमें क्या करना है, उस न्यू विंडो पे हमें उसी फोल्डर के नीचे क्या करना है, जहाँ पे हाईलाइट होगी ब्लू लाइन, तो ब्लू लाइन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, कोई भी नाम जो भी हमारा पर्टिकुलर फोल्डर का नाम असाइन करना है, assign करना है, and then after press you have to hit on the enter keys, so the new name will be automatically
ऐड ऑन द पर्टिकुलर, या फिर पर्टिकुलर जो भी हमारा नेम रहेगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा पर्टिकुलर फोल्डर पे. सो हियर now after that we will know about how can you open the particular folder. So simple select the particular folder and hit double click या फिर simple click on the mouse right button and then after select the open option. So the particular folder या फिर particular files will be automatically open. And then after that we will discuss about how can you delete a particular file या folder from permanently या फिर जो भी हमारा पर्टिकुलर फाइल फोल्डर जैसे हम डिलीट करते हैं तो डिलीट करने के बाद वो हमारा रिसाइकल बिन में चला जाता है. तो यहाँ पे दो मेथड हम डिस्कस करेंगे. पहला होता है जो हमारा टेम्पररी डिलीट करता है फाइल्स को, एंड अदर मेथड होता है परमानेंटली रिमूव करेगा फाइल्स या फोल्डर को फ्रॉम अवर सिस्टम से. तो किस तरीके से हमें फॉलो करना है दीज स्टेप्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिलेक्ट द पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर, जो भी हमारा पर्टिकुलर फाइल फोल्डर जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो उसको हमें क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट करना है. एंड देन आफ्टर यू विल क्लिक ऑन द सेकेंडरी बटन ऑन द पर्टिकुलर फोल्डर. जो भी हमारा पर्टिकुलर फोल्डर रहेगा उस पर हमें क्या करना है, सेकेंडरी माउस का जो माउस रहेगा माउस का सेकेंडरी बटन को क्लिक करना है. एंड देन आफ्टर द न्यू विंडो विल बी जनरेट. सो इन दिस विंडो यू विल सिलेक्ट द डिलीट कीज ऑन द कीबोर्ड. या फिर सिंपल हमें क्या करना है, पर्टिकुलर फोल्डर को सिलेक्ट करना है और जो भी हमारा कीबोर्ड पर जो डेल का बटन होता है DEL, तो इस डेल फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो भी हमारा फोल्डर रहेगा डिलीट कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो भी हम डेल का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर हो जाएगा फोल्डर वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, वो हमारा रिसाइकल बिन में चला जाएगा. क्योंकि अभी हमारे जो फाइल्स को हमने जो डिलीट किया है वो हमारी एक प्रकार से टेम्पररी डिलीट हुई है, और जो टेम्पररी फाइल्स होती हैं वो डिलीट होने के बाद कहाँ पे मूव हो जाती हैं, वो रिसाइकल बिन में चली जाती हैं. अगर बाय द वे अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर हमें परमानेंटली डिलीट करना है, मीन्स हम कंफर्म है कि हमें इस जो भी पर्टिकुलर फोल्डर है उसको हमें कंप्लीटली हमें हार्ड डिस्क से रिमूव करना है. तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल हमें कुछ जो हमारा शॉर्टकट कीज रहेगी, सिंपल क्या करना है, उस पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना है. एंड देन आफ्टर यू विल प्रेस दीज कीज टुगेदर, मीन्स कंट्रोल शिफ्ट प्लस डेल. You have to select Control Shift plus Del. If you have to select the more than file, then after that you will press Control keys plus Shift keys plus Del keys. So when we will press these three keys को हम क्या करेंगे, जब भी हम कंटिन्यू मीन्स एक साथ प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी हमारी पर्टिकुलर फाइल्स रहेंगे, पर्टिकुलर फोल्डर्स रहेंगे, वो हमारी फाइल्स या फोल्डर डायरेक्टली हमारी जो हार्ड डिस्क रहेगी वो हार्ड डिस्क से रिमूव हो जाएंगे और वो हमारे डिलीट होने के बाद रिसाइकल बिन में नहीं जाएंगे. नाउ आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट हाउ कैन यू रिस्टोर द पर्टिकुलर फाइल व्हेन यू विल डिलीट द सम फाइल्स. जैसे कि जो हमारी फाइल्स रहती हैं उस फाइल्स को हम डिलीट कर देते हैं. अब डिलीट करने के बाद हमें पर्टिकुलर फाइल्स को वापस रिस्टोर करना है, मीन्स वापस उसको रिस्टोर करना है हमारी जो भी जहां से वो भी हमारी फाइल्स डिलीट हुई थी. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिसाइकल बिन को ओपन करना है. सो ओपन द रिसाइकल बिन एंड देन आफ्टर दैट यू विल सिलेक्ट द पर्टिकुलर फाइल्स. उसके बाद हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिसको हम रिस्टोर करना चाहते हैं. देन आफ्टर दैट क्लिक ऑन द पर्टिकुलर फाइल एंड देन देयर हैव टू ऑप्शंस आर open. So first one is restore the file and the second one is delete the files from a recycle bin. So you have to select simple restore the या फिर restore this file या फिर item. So particular file या folder will automatically move on the previous लोकेशन. तो क्या होगा, जैसे हम रिस्टोर करेंगे तो जो भी हमारा पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर होगा वो जिस लोकेशन से डिलीट हुआ था उसी लोकेशन पे वापस सेव हो जाएगा. एंड देन आफ्टर वी विल नो अबाउट हाउ कैन यू कॉपी या फिर मूविंग अप फाइल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फोल्डर या फिर वन फोल्डर टू अनदर फोल्डर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिंपल सिलेक्ट द पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर एंड देन आफ्टर यू हैव टू सिलेक्ट द कॉपी या फिर कट ऑप्शन. सपोज दैट इफ यू वांट टू सिंपल सेम पर्टिकुलर जो भी हमारा फोल्डर रहेगा उसकी हमें सेम कॉपी बनानी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो भी हमारा पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर रहेगा उस पर राइट क्लिक करना है एंड देन आफ्टर you have to simply select the copy option and then after we will क्या करेंगे, उसके बाद जो भी हमारा जो डेस्टिनेशन रहेगा उस डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद हमें सिंपल अगेन प्रेस करना है कंट्रोल V. तो अब यहाँ पे दो शॉर्टकट की का यूज करेंगे. कॉपी के लिए क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस C, और पेस्ट के लिए क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस V. एंड सपोज दैट अगर हमें एक जो पर्टिकुलर फाइल है उस पर्टिकुलर फाइल्स को एक
मीन्स जो भी हमारा पहले की जो लोकेशन है उस लोकेशन से हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर फाइल्स को कट करना है और जो न्यू लोकेशन है उसको हमें वहां पे सेव करना है या फिर पेस्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, Ctrl+X। तो Ctrl+X क्या करेगा, उस पर्टिकुलर फाइल्स को कट करेगा, मीन्स जो हमारी प्रेजेंट उसका जो लोकेशन रहेगा प्रेजेंट लोकेशन को चेंज कर देगा। और फिर चेंज करने के बाद अब हमें जहां पे भी जो हमारा डेस्टिनेशन लोकेशन है, अब हमें सिंपल माउस के कर्सर से उस डेस्टिनेशन लोकेशन को सेट करना है एंड देन आफ्टर प्रेस द Ctrl+V कीज टुगेदर, या फिर सिंपल प्रेस द right click on the mouse click and then after simple press paste option, so the particular file or folder will automatically move on to the destination location. So this is the method for creating a file, deleting a file या फिर restoring the file.